how can a system of an education nurture creative mindset instead of rote memorization? What system transformation can happen? देखिए, मेमोराइजेशन ईजी है इसलिए चल रहा है। आप समझिए पूरा सिस्टम कॉन्फिडेंस का होता है। 10 में 10 वाला जब जाएगा तो उसका ऐसा सीना चौड़ा रहेगा। फिर उसके बाद टीचर भी उसके लिए अकोमोडेटिव हो जाता है, सब कुछ उसके लिए अकोमोडेटिव, उसके लिए लाइफ आसान हो जाती है। इसका कम वाला होता है ना, वो बेचारा फंसता रहता है, शर्म आने लगती है उसको, वही बिलोंगिंगनेस नहीं आती है। उसको लगता है मैं पूछ रहा हूँ तो मैं गलत होऊंगा, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? 10 वाला पूछेगा, 6 वाला कैसे पूछ Self, सकता है? हाँ। और 3 वाले की तो बेचारे की हालत ही खराब है, वो तो बेचारा पीछे ही रह गया। अब इमेजिन करिए इस 6 साल के बच्चे को आपने एक एसओपी दे दी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 11 बजे आओ, 9 बजे आओ, इंग्लिश पढ़ो, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो, फिर ये करो, फिर 2 बजे जाओ, फिर 2 घंटे होमवर्क करो, फिर ये करो, फिर कर्सिव हैंड राइटिंग, कुछ भी करो। आप इमेजिन करिए आप उसकी पूरी एनर्जी को 5%, 7%, 8%, 10% में कर्टेल कर रहे हैं। वो 90% कहाँ लेके जाएगा यहाँ से? आप किसी को बोल रहे हैं यू हैव टू हैव टू हैव टू, और वो आपके कंपल्शन में हैव टू कर रहा है। जिस दिन वो पावर में या स्ट्रेंथ में या पैसे में आपके बराबर या आपसे ऊपर हो गया ना, वो आपसे बदला लेगा। Hello everyone. Today at Uzu Darbar, I have Shanky. Um I've known him for almost a decade, maybe a little more than a decade, and this boy, at at the level of family, he comes from a very successful business family. Uh, Taken up a lot of initiative in establishing various businesses. He's extremely successful at the level of businesses that he's running. But this podcast, I invited him, is not for his business success, but for something that I think the world should know. His core personality, his interiority of how he is within himself, and something that he wants to convey. His energy wants to convey, his being wants to convey. And recently started a very beautiful initiative called Utopia, a very out of the box school, which he hates calling it a school, by the way, and he'll talk more about it. And we'll dive deep into education, his personal philosophy, his view of life. And I think this podcast is going to be one of the most intriguing, insightful, and thought provoking. So I really look forward to welcome him and dive deep into the world of Darbar with Shanky, I would say. And to welcome Shanky, I'd like to start with playing flute, and just to kind of, it's like my way of welcoming you, Shanky. Thank So you. first of all, thank you for being here. Thank you. And so this is a little flute tone for you, music for you, a welcome note for you. All right. Excellent. All right, Shanky. Thank you. Thank you. Thank you, and welcome to Uzu Darbar. First question: why did you choose to come to Uzu Darbar? So मैं तो चीज़ें बहुत सरल रखता हूँ. I keep things very simple. The reason that I come here is because you called me. It's very simple. And then you said that we'll be discussing education. Yeah. और एजुकेशन एक बहुत 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 ही वास्ट चीज़ है अगर देखा जाए तो, और नहीं तो बहुत ही छोटी चीज़ है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते. बिकॉज यू along with the topic that you choose and the simple thing that you asked me is the reason that I am here. All right. So, given a choice, I want to know what topic would we call this episode, like the conversation that we're having together. What would your choice be? I think learning.
लर्निंग कैन बी अ वेरी गुड टॉपिक अगर हम लोगों को सिर्फ एक वर्ड पे स्टिक करना है. How to be, how to learn better, or how to be better at learning. So it has to be around not education, not school, not utopia. It has to be around learning. Got it. All right. So, the way the podcast would be is we're going to start with a brief of your introduction. Okay. Yeah, a little bit that I would like the world to know about you. And then we'll dive deep into learning and related question. And of course, your philosophy that you started around Utopia. So, is that okay? Yes. So I'll give you a very brief introduction of myself. So I have done my all graduation and everything, and I finished it by 2008. So I've been into business very early in my age. I was around 20 when I started business. Then I think for a stretch of 7 to 8 years, I was doing nothing, but I was completely involved in doing my family business. It revolved around doing some construction work, some limestone mining, and this and that. By the time I reached a age of around maybe 28, 30, I realized that there is more to life. Obviously, there were seeds planted before, but then my process of doing business and involving with people around me, it just felt that yes, there is something else also. Then by the age of 30, I started doing some other projects which were different from my business. Education as a whole was one thing which I started pursuing, I think 10, 12 years back. Education, I mean how the education system works. So I ventured with few government schools. I ventured with the diet camp, which is called diet is District Institute of Education and Training, where all education system how of a district works, it happens there. I ventured there, then I visited many government schools, then I visited villages, then I visited private schools. I have ventured everything which is around Satna. And then in 3-4 years, I realized that this education system doesn't have a flaw, but this education system needs a revamp. And then for the last 7-8 years, I've been doing my business. I'm still doing my business, but then I have building the how education system should evolve, not in Satna, but how in the state, in the country maybe, and it will not be मतलब in Hindi में से अतिशयोक्ति. I feel that maybe the global education system should also change. Okay. Very powerful. One thing personal from your life that I'd like you to talk about is your running journey. It's inspiring, and probably a lot of audience does not have any clue about your running experience. A little bit of that you'd like to talk about. So I think I started running 2.5, 3 years back. I've never run in my life. So मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं कैसे भी 10 मिनट नॉन स्टॉप दौड़ूं. ये ऑब्जेक्टिव भी मैंने करीब 8-10 साल पहले अपने दिमाग में रखा हुआ था कि आई हैव टू रन ओनली फॉर 10 मिनट्स नॉन स्टॉप. और मेरा उसके साथ जो एक एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव था जब आई हैव फाउंड माय कोच वाज कि कैसे मैं 70 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ पाऊं. सो आई हैड 2 गोल्स इन माय लाइफ. माय गोल नंबर 1 was to run 10 minutes continuously कैसे भी, जब तक मैंने अपना कोच नहीं ढूंढा था. जैसे मेरे को मेरा कोच मिल गया तो उसके साथ मेरा फर्स्ट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव वाज कि 70 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है. उसने कहा ठीक है शुरू करते. आई थिंक on my third day I was able to run 15 minutes non-stop. Third day, I have never run in my life, and within 60 days I was able to run 10 kilometers under 60 minutes. Wow. So the goal was to run 70 minutes में 10 kilometer. The goal, मतलब उसको 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है ना. And I did it in 60 days. उसका रीजन हम लोग जैसे जैसे इस कन्वर्सेशन को और आगे लेके जाएंगे ना, विल डिस्कस, बिकॉज दिस हैज टॉट मी वेरी इट हैज टॉट मी immensely, because वो जो चीज मैंने वहां सीखी है ना, that we'll be using in Utopia and I use in my life also. So ये रनिंग जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई. Then I think I am the only one who you can or anybody find running in Satna. मैं सतना की रोडों में पूरे टाइम दौड़ता रहता हूँ. These days I am running around a mileage of 60 kilometers a week. So I run 2 days of easy run, 1 day of a hard workout and 1 day of a long run. My long run is somewhere between from 2 hours. In winter it goes to 3 hours, 3.5 hours also. Wow. एंड रनिंग में लगता होगा ना बहुत डिफिकल्ट है. जिस समय मैं थक जाता हूँ मैं रुक जाता हूँ.
इसका मतलब अगर मैं 3 घंटे दौड़ रहा हूँ मतलब मैं नहीं थक रहा हूँ. So this is how your body adapts Wow. when you start doing certain things. This is how. So as a runner I have evolved. और अभी when I talk to my coach or somebody, you won't believe running journey starts after 5 years. I was still 2.5. मुझे अभी दौड़ते हुए 2.5 साल हुआ है. And people say that running journey starts after 5 years. It peaks at age, मतलब running age of 10-12 years, and then after maybe 18-20 years it starts declining, as it happens for a cricketer also or for a footballer also. So I have actually not begun right now. Very interesting. Since this conversation is happening, what are core lessons that you learned in your running journey that you feel are universally applicable to any learning? If we have to find just simple one lesson, na, we can tone it down to a simple one lesson. Which is? And power of structured learning. Structured learning. So there is a huge difference between learning and structured learning. And from this point, I'll take the opportunity to let's dive into the education or the learning process. See, school is a structured learning process. Yeah. College is also a structured learning process. Any school you go, maybe a school, maybe a college, maybe a PhD, they are all structured. You start from grade 1, grade 2, it goes till grade 8, and then 9, 10th, 11th, 12 जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल में बोलते हैं, उसको थोड़ा और सब डिवीजन करेंगे तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, वट एवर यू मे कॉल इट. देन देयर कॉलेज, देयर आर सेमेस्टर्स. सो बेसिकली वो लोग जो कोर्स को डिजाइन करते हैं, भले वो स्कूल का कोर्स हो या कॉलेज का स्कॉल हो, उनको पता है. सो दे विल क्लासीफाई दैट whole education to pieces, then they will fix that pieces for a certain year. उस certain year को भी tangible form में 6 महीने में, 3 महीने में, ट्राइमेस्टर का भी टेस्ट होते थे, आजकल मुझे नहीं पता क्या होते हैं, देन यूनिट टेस्ट हुआ करते थे. सो ये है पूरी स्ट्रक्चर लर्निंग का प्रोसेस. आप कब 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचते एल्जेब्रा या 11th तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ जाएंगे, आपको क्लास फर्स्ट में पता नहीं होता. सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ यू डूइंग वट एवर इज आस्क्ड टू यू डू एट अ सर्टेन क्लास. क्लास 1 में ये करना है, 2 में आपको नहीं पता होगा क्या करना होगा, फिर 2 में ये करना है, 3 में करना है. द कोच नोज और द टीचर नोज इन दिस केस, और मे बी द एजुकेशन सिस्टम नोज जो इस पूरे सिस्टम को डिजाइन कर रहा है, और द की एजुकेटर जिसको कह सकते हैं ना, हु डिजाइन्स द सिस्टम, Could be the policy maker. प्योर पॉलिसी मेकर. उनको पता है बिकॉज दे हैव ऑल गॉन थ्रू. सो आज अगर मेरे को आपको रन कराना है तो आई नो मेरे को आपको कैसे रन कराना है. और मैं अगर आपको डे 1 पे बोल दूंगा कि यू हैव टू रन 20 किलोमीटर्स, यू विल नॉट साइन इन फॉर द प्रोग्राम. बट इफ आई स्टार्ट स्मॉल तो वो करेंगे. सो द सिंगल मोस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस रनिंग जर्नी इज द पावर ऑफ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग. एंड आई एम वेरी मच pro to that. There has to be a structured learning. Obviously at an early age that structure has to be very subtle. बहुत इतना subtle होना चाहिए कि वो दिखे ही नहीं, but आपको पता हो कि वो एक structured format है. This is where my learned philosophy, I'll not call it my philosophy, whatever I acquired philosophy is कि आपको पता नहीं होना चाहिए. जैसे कभी कभी नहीं बोलते कि इंजेक्शन लगाने से पहले अगर आप बता दो कि आपको इंजेक्शन लगने वाला है तो उसका पैनिक ज़्यादा बड़ा होगा. यू नो 30 सेकंड बिफोर, 30 सेकंड्स में खेल हो जाएगा. बट अगर आपको आज रात को पता हो कि कल सुबह मुझे इंजेक्शन लगने वाला है और आप थोड़े से भी स्केर्ड हो, यू माइट नॉट स्लीप एट द नाइट. सो ये पूरा प्रोसेस है. तो द कोच or maybe the teacher or maybe the guru, master, whatever you call it, knows the process. You just have to follow that structure. Along with it, there are few more things जो हम लोग अगर रनिंग को भी रेफरेंस ले रहे हैं तो this power of structured training. And then for running, other than running, you need to have strength in your muscles. A, you need to have a good diet. B, you need to have good rest, which is sleep. C. So ये जो 3 चीजें हैं ना, अच्छा सो, अच्छा खाओ, और दौड़ने के लिए आपके पैरों में मजबूती होनी चाहिए, या हाथ भी चलते हैं हाथों में भी होनी चाहिए, ये अलग से उसके साथ रिक्वायर्ड है. सो अगेन, सो देयर इज अ प्लान, एंड देन दिस प्लान इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय दीज थिंग्स. Got it. सो उस प्लान के साथ बहुत सारी चीजें जो उस पूरी जर्नी को सप्लीमेंट कर रही हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रनर नहीं होता और अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होता प्योर, तो ये पूरी चीजें तब भी वही रहती. Then I would not be calling myself a runner. I would be calling myself as a bodybuilder. But then मेरे लिए कार्डियो स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती, तो मेरी रनिंग का माइलेज कम हो जाता. तब मैं 50 किलोमीटर की जगह शायद 15 किलोमीटर दौड़ रहा होता, बिकॉज आई हैव टू रन फॉर 1.5 hours इन अ वीक
टू मेक माई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेटर, बट देन फिर मैं मसल्स में काम कर रहा होता. यू नो द प्रोपोर्शन विल चेंज. अब ये मेरा हो सकता है प्रोटीन इंटेक कम हो, फॉर बॉडी बिल्डिंग माई प्रोटीन इंटेक हैज टू इम्प्रूव. सो इन 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन आप कैसे कर रहे हो विल मेक यू अ पर्सन हु विल अचीव व्हाट दे वांट टू. सो बॉडी बिल्डर के लिए भी पांचों चीजें जरूरी है. प्रपोर्शन विल चेंज. रनर के लिए भी ठीक है, द प्रपोर्शन विल चेंज. और किसको कुछ भी नहीं करना, अगर ही जस्ट वांट टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, स्टिल ही शुड ईट सिंपल, डू स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्डियो वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अगर उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्टिल ही वांट टू लिव अ गुड लाइफ, तब भी ये पांचों चीजें जाने नहीं वाली रहेंगी. उनका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, उनका प्रोपोर्शन घट जाएगा, बट ये पांचों रहने वाली है. Thank you for sharing those insights, and I'd like to dive deep into our core, intention of this workshop, this podcast. See, I'm an educator. I'm always talking about workshops. Is your vision for Utopia, and my first, probably one of the most foremost question would be, what transpired you to start Utopia? What happened? What was it that happened? Was it some influence of a child? Or something that you saw? What happened? What made you get into this? अगर हम लोग बाहर से देखें, मतलब इफ वी स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द आउटसाइड, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोसाइटी और अ वर्ल्ड. वी हैव अ कॉन्सेप्ट विच यूजली वी टीच आवर चिल्ड्रन, जिनको आप जानते हैं आपकी फैमिली में या जैसा भी हो. और वो कॉन्सेप्ट ये है बहुत छोटे में, यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी अकोमोडेटिव, यू हैव टू बी गुड. जो भी जिनके उनकी डेफिनेशन है काइंड, गुड, अकोमोडेटिव होने की. वी वॉन्ट टू बी सो कॉल्ड कोट एंड कोट हैप्पी, और ज्यादा खुश रहे, मतलब लड़ाई वड़े नहीं, सब कुछ करें. ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं. इनफैक्ट घर में जब दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो भी हम लोग ये बोलते हैं ना कि लड़ो मत यार. एंड सी व्हाट वर्ल्ड इज राइट नाउ, एवरीबडी इज फाइटिंग. सी so right now जब हम लोग बैठे हुए हैं, so India is fighting a war against, not a war, but there are principal differences which usually turns out to be वो military confrontation में भी convert हो जाता है. अगर नहीं भी हो रहा है तो war दिमाग में तो चल ही रही है, military confrontation उसका manifestation है. So Russia and Ukraine are fighting. See, America is also doing a sort of tariff war. They are also doing. उसके पहले ही war, इसके पहले भी चलती आई हैं, सदियों में लड़ाइयाँ चलती आ रही. So कितना difference है ना. We are telling everyone, every single child when he is 3 years, 4 years, 5 years, लड़ना नहीं है, अच्छे से रहना है, बेस्ट बिहेवियर देना है, डिसिप्लिन रहना है. और जब वही बेस्ट, वो जो हम सिखा रहे हैं और जब वो हो रहा है तो कुछ और ही हो रहा है, सब लड़ रहे हैं. इनफैक्ट इंटरनली भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिविल वॉर्स भी हो रही हैं. इसका मतलब इस सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉ है. दिखेगा फ्लॉ या नहीं दिख रहा है, वो हमारे और आपके ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है, बट द रिजल्ट एंड द इनपुट आर नॉट कंसिस्टेंट. ये दिखता है. सो व्हेन आई स्टार्टेड विजिटिंग स्कूल्स, आई सॉ कि ये तो बहुत लंबे, मतलब बहुत बड़े तर्ज पे हो गया ना, कि एक रिजल्ट इनकंसिस्टेंट है और हमारा इनपुट डिफरेंट है. वैसे स्कूल के साथ भी है. हम स्कूल में बच्चे को जो कराना चाहते हैं, हमारा एक डिजायर्ड गोल रहता है, वर्सेस जो इनपुट्स हैं, मतलब जो हो रहे हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं. वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, उसका इंप्रूवमेंट करना है कि नहीं करना, वो कब आएगा. सबसे पहले उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज टू एडमिट इट ना, एक्नॉलेज करें, उसको एडमिट करें कि यस देयर इज सम डिफरेंस. व्हाट वी वांट एज द आउटपुट एंड व्हाट वी आर डूइंग इज द इनपुट, इसमें डिफरेंस है. सो मैंने शुरू करा जगहों पे जाके. आई नेवर वांटेड टू क्रिएट अ स्कूल और यूटोपिया और व्हाटएवर इट इज ऑफ माय ओन, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कुछ इस तरीके का वो बट लग या जो भी बोल दीजिए वो हुआ, ठीक है, विल डिस्कस दिस. तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट किए, मैंने बहुत सारी जगह गए, जैसे मैंने डिस्कस किया, और मुझे हर जगह वो इनकंसिस्टेंसी दिख रही थी. तो मैंने वहाँ जाने के बाद कोशिश करी कि ये ऐसा किया जाए तो ऐसा है, ऐसा किया जाए तो ऐसा है, बट वो इनपुट हमारा लिया ही नहीं गया. मतलब इवन द गवर्नमेंट स्कूल टीचर सेड कि नहीं, हमको जैसा कर रहे हैं करने दे, पॉलिसी ये कहती है. प्राइवेट स्कूल्स में भी वी ट्राइड कि हम एजुकेटर की तरह हमको लिया जाए, वी वांट टू बी रिप्लेस योर टीचर्स एज फैसिलिटेटर्स, एजुकेटर. एक दो प्राइवेट स्कूल के साथ में कुछ काम भी किया, बट अल्टीमेटली उनका लेवल ऑफ इन्फ्रिंजमेंट वहाँ पे आके वो हमको अलाउ नहीं करते एक सर्टेन लेवल के बाद कि बस अब यहाँ पर आपको नहीं करना. सो जब ये सब हो गया एंड फाइनली लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि अब इसमें कुछ नहीं करना. देन सडनली अ थॉट केम कि यार चलो, हमने एक वो लिया था ना, मतलब कि हम नहीं करेंगे ये,
अपना खुद कुछ नहीं करेंगे। बट मैंने कहा उसको रीथिंक करते हैं। जब उसको बहुत बार रीथिंक किया तो मैंने कहा नहीं यार, एक ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो अंदर है ना, वो रह जाएगा। लेट इट स्टार्ट। सो दिस होल 7, 8, 10 years of, maybe you can call it a struggle and not finding the correct solution, is what initiated the concept of utopia. ये यहाँ से यूटोपिया का मतलब जन्म की सीड पहले थी, अभी उसका मैनिफेस्टेशन हो गया, अब वो यूटोपिया बन गया। It's interesting that you don't like Utopia to be called school. No. Why is that? मतलब वो हार्श हो जाएगा बहुत। And the second question, which is actually adds on to this, is, and you don't want to call classrooms as classrooms. Yes. You call them lab. So probably these two questions I'd like So to throw. हम लोग जहाँ बैठे हैं, you don't want to call it a room. Of course. You want to call it a दरबार or whatever it is. Yeah. So हर नाम का, हर मीनिंग, हर शब्द का एक अर्थ है। एक तो अर्थ है, उस अर्थ के साथ हर शब्द की एक इमेज भी है। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा जेल, आप लोगों को सबको जेल दिखने लग जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा पोल्ट्री फार्म, आप लोगों को मन में पोल्ट्री फार्म दिखने लग Yeah, it's जाएगा। a conditioning that we have. सो इट्स अ कंडीशनिंग। सो जैसे स्कूल बोला गया ना, स्कूल बोलते ही आई डोंट नो, बट जो मैंने समझा है ना, बच्चे को क्या दिखेगा? बच्चे को कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगी, बच्चे को होमवर्क दिखने लग जाएगा, बच्चे को टीचर्स दिखने लग जाएंगे, बच्चे को फोर्स डिसिप्लिन दिखने लग जाएगा, उसको सब कुछ दिखने लग जाएगा। सही बात है। क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी है। और बच्चे को नहीं, पेरेंट को भी दिखेगा, उसके दादा को भी दिखेगा। 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के आदमी के सामने आप बोलिए स्कूल, उसको सब दिखेगा। जैसे आप उसको बोले जेल, उसको हो सकता है क्रिमिनल्स दिखने लग जाएं, उसको स्टील रॉड्स दिखने लग जाएं। आप उसको बोलिए पोल्ट्री फार्म, सो एवरीथिंग हैज अ इमेज टू इट। सो एज सून वी स्टार्ट कॉलिंग यूटोपिया एज अ स्कूल, उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। फिर माई प्रोसेस और माई टीम्स प्रोसेस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं, स्कूल नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये है। ये क्या है? ये क्या का हमारे पास कोई नाम नहीं है। एंड आई एम वेरी ओपन टू एडमिट इट। वी आर कॉलिंग इट यूटोपिया, वी आर नॉट कॉलिंग इट स्कूल। Similarly, we don't claim to have what education should be. What I claim, or what my team claims here, is what education should not be. So this should not be called as a school. Right now we are calling it utopia. उसी तरीके से एजुकेशन में ये एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है। क्या क्या नहीं है ना, वो हमको पता है। So there is a Vedantic philosophy जिसमें कहते हैं नीति नीति, this is not this, this is not this, this is not this. So we are trying to reduce कि नहीं, स्कूल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर जो बचेगा वो देखेंगे क्या है, देखेंगे। वो We'll क्या है। still explore it. We'll still explore it कि वो क्या है। हाँ, so यहाँ से आया। So इसलिए मैं उसको स्कूल। Similarly classrooms आपने पूछा, again when you start calling it classrooms, so again there is the image of classroom also. So we don't want that image in anybody's mind. We will paint our own same picture. structure basically. We'll paint our own picture, na? Got it. Let child paint their own picture. It's very interesting, at Utopia, there's this tagline, or probably your vision statement also, which says, you belong where you feel free. Yes. So talk about it. How did you arrive at it? Was it your personal thing? You copied it from somewhere? What was No, it no. like? So definitely copy करने की तो इसमें जरूरत नहीं है, because I feel कि I'd like you to repeat that statement once. you belong where you feel free. Yeah. So I feel that love, or to love and to be free, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की दो बहुत ही इनेट नीड्स हैं, या रिक्वायरमेंट्स हैं, या नीड और रिक्वायरमेंट बोलेंगे, वो उसकी कोई इनेट क्वालिटीज हैं उसकी। अ पर्सन जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट लविंग, और उसको फ्रीडम चाहिए होती है। थोड़ा सा हम लोग डेविएट होते हैं। आप बताइए, जितने भी स्ट्रगल हैं, जितने भी, फिर हम लोग वॉर्स पे आते हैं। यूक्रेन का रशिया के साथ स्ट्रगल चल रहा है, या इंडिया का पाकिस्तान के साथ चल रहा है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? somebody wants to get free of somebody ना। So India had जब लड़ाई, गांधी जी ने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल किया, वो भी फ्रीडम स्ट्रगल थी। फ्रीडम वर्ड ही आ रहा है ना। एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, या तो टेरिटोरियल फ्रीडम है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं उनको इंटरनल फ्रीडम चाहिए, जो लोग पैसे की बात कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जब एक घर में कपल या एक वाइफ होती है, जैसे विमेन होती है, तो विमेन का बड़ा क्लियर है ना, वी आर नॉट लिबरेटेड, वी आर नॉट फ्री। एवरीबडी, हर जगह, सिर्फ और सिर्फ अगर आप टोन डाउन करेंगे ना, दिस विल कम डाउन टू स्वतंत्रता, यूनिक, मतलब क्या कहते हैं उसको, यूनिफाइड थ्योरी। दैट यूनिफाइड थ्योरी इज एवरीथिंग, एवरी स्ट्रगल
that somebody do is to be free. अंडे से चिड़िया निकलने का स्ट्रगल भी to get free. So basically we are all seeking freedom. किसी को पैसा इसलिए, पावर भी इसलिए चाहिए कि फ्री हो जाए. आप कर लीजिए पूरा हिसाब किताब, सब कुछ फ्रीडम पे आ जाएगा. और सेकंड इज टू लव. वो आपकी इनेट क्वालिटी है. जब लव मैनिफेस्ट नहीं हो पाता तो वो ग्रीफ में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो हेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, किसी में भी नहीं हो सकता. सो अ पर्सन हु कैन लव एंड हु इज फ्री, उसको लाइफ में कुछ क्रिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो यू बिलोंग वेयर यू फील फ्री. आपका स्टेटमेंट है जो आपने बोला कि मेरा एक स्टेटमेंट है, यस. तो आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सिर्फ उस जगह से ही आएगी जहां पर आपको फ्रीडम लगेगा. It's very interesting, Shanky, that I observe a lot of young people all around, and talk to them when they generally. I belong to a family where 43 of us stay together, and generally ask them, when they come back from school, what did you learn today? How was your experience? And the sense of belonging, towards their school is hugely missing. And what I feel is that the involvement of the core of who you are cannot happen unless there is the sense of belonging. Exactly. And I feel this is something which is hugely missing in schools. And when I go and talk to the teacher and dive deep into their life, they have their own, they also don't belong. They have their own reasons for not feeling belong in the campus. In the campus, if you whatever, in the home. No. We'll first talk about the campus because ultimately the consequences the children, right? That they don't belong in the campus. They don't belong to the campus. In fact, just to give you a perspective, there was a recent interview that I did with many educators. I discovered that a lot of educators are educators because they could not do anything else. Yes. Right? So that sense of belonging is missing. Now I'm saying, when this sense of belonging is missing and parents are going about, bhai homework kar le, ye kar le, wo kar le. Ultimately, this big drama of pretension is left, right and center. What is the outcome? I really don't know, ना आउटकम है ना, बताया तो मैंने आपको. Aggression, absolutely. ये आउटकम इसी का है. So tell me, at Utopia, how do you intend to create belongingness? So ये जितनी भी चीजें आपने बोली ना, ये सब गन पॉइंट पे होती हैं. Not the real gun point. You have to do the homework. You have to come to school. You have है ना, इंसान हैव वर्ड को रिजेक्ट करता है. मेरी जो थ्योरी कहती है, मतलब मैं जब भी बोल रहा हूँ मेरी थ्योरी कहती है, तो इट इज व्हाट आई हैव लर्नड और व्हाट आई हैव, मतलब मेरा कोई यस. सो आई जस्ट वांट टू, एंड देयर इज आल्सो अ डिस्क्लेमर दैट, मतलब अभी वी आर मे बी स्टार्टेड और वी आर द मिडिल ऑफ द पॉडकास्ट, कि दो चीजें ऐसी हो सकती हैं व्हिच समटाइम्स लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी. सो देयर आर टू लेवल्स वेयर समटाइम्स आई टॉक. द वन लेवल इज द व्यवहारिक लेवल, व्हिच इज द यूटिलिटेरियन लेवल. उस यूटिलिटेरियन लेवल पे ये लग रहा है कि हमारे पास हर चीज करने की फ्री विल है, एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग मोर ऑफ दैट ओनली. Yes, we have the free will to do any change that we want in the world. Which Swami Vivekananda also used to say that you have the power to do anything and everything. ये अपने पास courage है और अपने पास free will भी है. And sometimes I might drift into a second level also, which is called as the existential level or the paramarthic level, जिसको हम लोग कहते हैं. वहां पर वो free will वाली चीज खत्म हो जाती है, तो ऐसा लगता होगा सब कुछ ठीक चल ही रहा है. So right now we don't want to drift to that level. But sometimes if a statement looks like, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग drift कर रहे हैं. अब आपने जो चीज पूछी कि व्हाट द डिफरेंस, या सो माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू क्रिएट बिलोंगिंगनेस एट यूटोपिया. सो ये सब जो गन पॉइंट पे चल रहा है, नॉट द लिटरली गन पॉइंट, इज द यू हैव टू. अ ह्यूमन माइंड रिजेक्ट्स हैव टू. आप 3 साल के बच्चे से हैव टू में काम नहीं करा सकते, आप उससे हार जाएंगे. आप उसको बोलिए तुम्हें ये कंप्लाई करना है, वो आपको कंप्लाई नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, आप थक जाएंगे. बट बिकॉज यू हैव पावर ओवर हिम, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो आप एग्रेशन का, कभी कभी मारने का, किसी भी चीज का कर लेके उसको आप चुप करा सकते हैं, बट उससे हैव टू नहीं करा सकते. आप जीत जाएंगे बट हैव टू नहीं करा सकते. इन यूटोपिया वी जस्ट वांट टू रिमूव दैट वर्ड, यू हैव टू. यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू, यू कैन डिस्कस, यू कैन सी अदर्स डूइंग, बट यू डोंट हैव टू. व्हेन यू डोंट हैव टू, तो हैव टू वर्ड इन स्पिरिट इज रिप्लेस्ड बाय बीइंग. So you just be there. उसके बाद आपको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बाय डिफॉल्ट मिलेगी. से अगर कोई ये बच्चा बोलता है कि मेरे को ये सर्टेन क्लास नहीं लेनी है, सो वी राइट नाउ नॉट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम. बट अगर किसी व्यक्ति के पास कॉन्शियस फैसला करने का पावर आ गया है,
कि मे बी एट एज 12 और 13 दे डिसाइड्स कि हमको नहीं पढ़ना है ये चीज़, तो वी माइट डिस्कस दिस विद देयर पेरेंट्स विद देम एंड से कि उसको नहीं पढ़ना है। अब अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो वी आर डूइंग इनजस्टिस टू हिम। दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग स्टिल कम। दिस इज नॉट रिबेलियन एटीट्यूड, दिस इज दिस बिलोंगिंगनेस एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते। आई एम प्रो संस्कृत बिकॉज संस्कृत इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, बट बच्चे को नहीं पढ़नी है संस्कृत, उसको नहीं समझ रहा संस्कृत पढ़ना। हो सकता है उसकी एज कम है या जो भी वॉट एवर, उसको रिजेक्ट कर रहा है संस्कृत, या उसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं संस्कृत क्यों पढूं। अब से फॉर एग्जांपल दैट चाइल्ड कम टू योर से मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना, और मैंने बोल दिया ठीक है संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हम लोग एक क्रैश कोर्स करने की कोशिश करेंगे 3 महीने बाद, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं लगा तो फिर वील सी क्या करना है। तो अब ये बच्चे को अच्छा लगेगा। अगेन दिस इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम, बट दिस इज गोइंग फॉर द चाइल्ड। अब सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि फॉर द चाइल्ड अगेंस्ट द सिस्टम हो रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। But for us, child is the utmost important thing around which the whole utopia is built. It is child's Centricity. conscious preference और it is child centric जो यूटोपिया में हम लोग कर रहे हैं। अगर उसको नहीं करना तो we'll talk क्यों नहीं करना, बट अल्टीमेटली अगर वो हमको कन्विंस कर रहा है तो बिकॉज हम लोग पावरफुल हैं एज में या स्ट्रेंथ में, हम उससे जबरदस्ती नहीं करा सकते, नहीं कराएंगे उससे। सो दिस हैव टू इज रिप्लेस बाय बीइंग। यहां से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। यू जस्ट कैनॉट से हैव टू, बिकॉज इसका ऑपोजिट रिजल्ट पता है क्या है? यू विल थिंक, जब जब आप किसी को बोल रहे हैं यू हैव टू हैव टू हैव टू, और वो आपके कंपल्शन में हैव टू कर रहा है, जिस दिन वो पावर में या स्ट्रेंथ में या पैसे में आपके बराबर या आपसे ऊपर हो गया ना, वो आपसे बदला लेगा। बोला तुम्ही ने हैव टू करवाया था ना, अब मैं बताऊंगा क्या करना। सो यू नो व्हाट राइट नाउ द सिस्टम इज बिकॉज इतना हैव टू था कि वो हैव टू का ऑपोजिट है। यू नो व्हाट हिटलर वांटेड टू बी? हिटलर वांटेड टू बी अ पेंटर। हिटलर के टीचर ने उसको पेंट करने के लिए, जब वो पहली बार गया, उसने मना कर दिया। बहुत मतलब मना विल बी अ स्मॉलर वर्ड, मतलब बहुत बेदर्दी से मना कर दिया, मतलब है ना। और उसको ऐसा लगा कि उससे कुछ पाप हो गया है क्या, मतलब क्या हो गया, मतलब उसने सिर्फ पेंटिंग करने की इच्छा ही जाहिर करी थी, यू नो यू सी द रिजल्ट। सो ये जो हैव टू है ना, ये बहुत बहुत मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता अगर वो पेंटर हो गया होता तो शायद ये सब नहीं हो सकता, दैट्स अदर डिस्कशन। बट यस, ये बच्चे के साथ मतलब उसकी इंडिपेंडेंस के साथ वो है, मतलब अत्याचार है। हैव टू नहीं हो सकता। You know, one thing that I'd like the audience to observe, you know, very powerful statement that Shanky just made out. And even in my experience, it's unfortunate that I notice most of the students are going through this have to things, and that sense of freedom is missing. All that we are getting is, a bunch of or a whole lot of youthful energy, which is, not directing their energies into the thing which actually can make a positive impact. But, something very similar to or a structure of what Hitler went through. I'd like to share one of my experience, Shanky, over here. I was in love with innovation as a subject during my MBA. And I discovered a company called IDEO, which is based out of Palo Alto, California. I stumbled upon this book called 10 Faces of Innovation by Tom Kelly. And when I read that book, it was written by the founders of IDEO. I was like, dude, this is what I want to do. And I fell in love, like madly. And then, during MBA, you have this thing called doing your internship or doing your thesis or whatever. There are different things that you do during those programs, second year. So my thesis time came and I went to my professor. And he was distributing topics, what came from some system, हर 5 लोग को ये टॉपिक, अगले 5 लोग को ये, अगले 5 लोग ये. I went to him, subtly told him, sir, I'd like to change my topic and I'd like to decode how IDEO innovates. And he's like, dude, I can't do anything about it. You have to go and meet the director. I went to the director. I said, sir, this is what I've read. And I'd like to, change this topic. Most of my friends are buying the theses from Katwaria Sarai by paying $600. I genuinely want to invest 6 months' time to learn this. And he also said no. That was the time I dropped out from my college. I was literally crying in the toilet. I still remember having that goosebump right now. That I was finding it very helpless, And I don't know why he did it. Probably, if he would have gifted that
environment to me, which is expected out of a campus, I would have, I don't know what I would have done. Today I am very proud to say that I am doing so many interesting things. But if I would have got an enabling environment, it would have been much, 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 much more powerful. I stopped going to the campus from that day, from a week later. Did not tell even to my parents. I dropped out from my MBA. Self-taught myself how IDEO innovates. Connected with some people in IDEO, Sandra and Joycelyn Watt, one of the employees there. And it's almost 15 years now. And one thing led to another and another. And today I'm actually doing a lot of innovative work. Not because my system supported me. I was outrageous. I was the odd one out. And what I notice is people lack courage, to have that thing which just can make, the direction change. यहाँ पर ये देखिए, दिस इज अ स्टोरी ना, मतलब रियल स्टोरी. Yeah. यहाँ पर एक डिफरेंस है. आपने जो बोला ना, पीपल लैक करेज, यू सी टू whom you have to fight. They don't lack courage. उनके पास बहुत करेज होता है, बट उनकी लड़ाई किससे? आपकी कितने लोगों से लड़ाई हुई इस पूरे प्रोसेस में? नॉट अ फिजिकल लड़ाई. यू फॉट विथ योर कॉलेज, you fought with your family, My friend circle, you fought with your friend circle, they judge me all the time. and then the social. And right now, wherever you are placed, you are still seen as a round peg in a square hole or a square peg in a round hole, जो भी बोलते हैं. Yeah. So बहुत सारे लोग आपको एज अ रिबल भी क्लासीफाई कर सकते हैं. हो सकता करते हैं, हो सकता नहीं करते, मुझे नहीं पता. बट यू विल स्टिल नॉट फील दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस विद देम. Yeah. यू बिलोंग, अपनी जगह पे आप बिलोंग कर रहे हैं, इन योर प्लेस यू आर बिलोंगिंग. बट उनके साथ आप बिलोंग कर पा रहे हैं क्या? नहीं. वो लोग अपने साथ सब बिलोंग कर पा रहे हैं. सो आप समझिए, योर करेज is what took you there. But even after showing this 15 years of courage, you're still belonging to a very limited and confined people and confined area. But everybody else, उनको सब जो लग रहा है ना कि वो लोग अपनी जगह belong कर रहे हैं. तो ये जो आपके टीचर ने कोर्स नहीं करने दिया आपको, because क्यों नहीं करने दिया? Because it would have required an effort on his part, effort on his teacher's part, effort on your part also. उनको मेहनत करनी पड़ती है आपके साथ ना. तो मेहनत कोई नहीं करना चाहता ना. तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको फॉलो करना बहुत इजी है. बट जब उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से डेविएट होना होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आपको तो पता होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑडियंस नो, इन वेस्ट से अमेरिकन की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इसको दे चूज देयर सब्जेक्ट्स ना. उनको पता है वो किस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट आउट करेंगे, किसको ऑप्ट इन करेंगे, किस एज पे कुछ भी पढ़ सकते हो. वहां पर फिर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है एजुकेशन में. आई एम नॉट सेइंग हमारी खराब है या फिनलैंड की बहुत अच्छी है, अमेरिका की. आई एम नॉट कंपेयरिंग. बट ये ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग इन एंड ऑप्टिंग आउट एट यूनिवर्सिटी लेवल, एट स्कूल लेवल, एट हायर ग्रेड्स, एट एज लेवल, तीनों चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी है. हमारे ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. हमारा सिस्टम इज रिजिड. और उस रिजिड सिस्टम में जैसे ही आपने ये बोला कि मैं इस सिस्टम से ऑप्ट आउट करूंगा, आपकी लाइफ क्या हो गई? कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट एवरीबडी. Have whatever courage you want to have, but you have to fight a big system. You will lose. And even if you win, every time you will feel you are a loser, other than the small area where you are living. बहुत मुश्किल है ना वो survive कर पाना. ये है struggle. And that is why I have a very simple theory. जब तक 17 से 20% लोग ऐसे नहीं होंगे, तब तक 100% लोग ऐसे रहेंगे. I have a figure. I have tipping point. So you need 17 to 20% of people. 1 in 4 और 1 in 5 जिसको कहते हैं, अगर इस तरह से सोचेगा, then the system might change very fast. अभी वो फिगर मुझे ऐसा लगता है it is maybe 1 in 500. सोचो कितना बड़ा भी गैप है, 1 in 500. But this is what I call it conformism. So this is all conformistic attitude. हमको conformism को follow नहीं करना. We have to question conformism. Absolutely. We should follow. Yeah, why yeah. we have to conform? Why? Very true. So we have to question. We have to question why formal education is needed. जब आप पूछेंगे ना तो आपको authentic answers मिलेंगे. You need authentic answers. Otherwise तो you will keep on doing. Homework करना है, स्कूल जाना है, 7 बजे उठना है, 12 बजे आना है, IIT करनी है, नीट करनी है, ये करना है, वो ये तो मशीन कर लेंगे ना. तो पोल्ट्री फार्म में भी हो जाएगा ना. मुर्गी के साथ जो हो रहा है और बच्चे के साथ स्कूल में जो हो रहा है, अगर कोई ऑथेंटिसिटी से देखे तो बिल्कुल सेम हो रहा है. मुर्गी का एंड इज डेथ. यहां पर एंड लुक्स लाइक सक्सेस एंड फेलियर. मे बी सक्सेस अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, बट दैट सक्सेस इज इंटरनल डेथ. दिस माइट लुक लाइक वेरी हार्श, बट इट इज इंटरनल डेथ. राइट नाउ आप जो कह रहे हैं हो सकता है यू आर लिविंग,
बट अगेन यू आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ना. सो आप कोई क्या कर रहे हैं, एक सिंपल 9 to 5, बहुत कहते हैं 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब, हाउ मेनी करोर्स मिलियंस यू आर अर्निंग, बट स्टिल यू आर नॉट थिंकिंग, मतलब यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ, यू बिकम अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट. Yeah. And this all starts at age 4 and this continues till जो भी age है. You are not able to think beyond that. This is how our education system is. Just to add on to one perspective, again, during that time, my professor asked me, tell me what is the tagline of Mother Dairy. He was asking all of us, we're 60, 70 of us. And he pointed out to me, tell me you. I said, why should I know it? You tell me that first. He said, you should know it. I said, why? He said, you should know it. I said, why? He again said, you should know it. I said, like, why? Literally asked me to go out of the class. See, why should I just remember the taglines of the various companies? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया ना. You know, Why is like a, क्या कहते हैं उसको, कौन सा शब्द कहते हैं उसको, poisonous word in our society. yeah. So I want to ask you, do you encourage whys? Yes. Utopia? Utopia is built on this why. Yeah, okay. You have to. There is a theory of why. I know how. I don't know how many people. There is a why theory in Apple. Apple is Apple because of the why theory. 5 whys. Why? They always question why. No? You have to. मतलब आप पूछो ना. And you should get answer or you should get an authentic response also. Yeah. If you start questioning me, I have the liberty of saying that I don't know. And let us figure it out. ये एंड होना चाहिए, ना कि क्लास से बाहर निकालना एंड होना चाहिए. वो आपसे ये बोल सकता है कि वरुण मुझे भी नहीं पता यार मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ. हाँ. Let us discover it. That could have been a curiosity question, right? I was expecting that, or he could have acknowledged. Frankly, I'm asking, but I also don't know. That relationship. We have never thought about that. This is how we do it. This is how we do it. So it's basically a school or utopia or any school or society. They're very closed. So one of the core lessons that the viewers can take from this podcast is, if you don't know, acknowledge it that you don't know. Especially this one is for all the educators. You don't know what is the consequences of that. I've had a very tough time, and a lot of young people, do get into. You don't know, one instance can impact their life so much. एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे, उसका नाम था मार्क ट्वाइन. पता नहीं आपने सुना होगा, कई तुमने सुना नहीं, मुझे उनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है. मतलब इसको बोल्ड में हम लोग कर लेते हैं ताकि लोग, इट इज नॉट व्हाट यू डोंट नो दैट गेट्स इनटू ट्रबल, इट इज नॉट व्हाट यू डोंट नो दैट गेट्स इनटू ट्रबल. जो आपको नहीं पता और आपको पूरा विश्वास है कि आपको गलत पता है. See, मतलब it's like, I'll help you do that. It's not what you don't know is the trouble. It's what you know. But it ain't so. But it is ain't so. Which is ain't so. So it's not what you don't know that gets into trouble. It what you think that you know, but it ain't so. Yeah. That means कि ये वो चीज नहीं है जो आपको नहीं पता. नहीं पता से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम तब होगी जब आपको पूरा विश्वास है कि पता है और वो गलत पता है. This is the policy right now, not in our country, everywhere. So what do you do at Utopia to break that? So, पहली बात तो देखिए, जब लोगों के पास या बच्चों के पास फ्रीडम है ना कुछ भी आस्क करने की, वाई करने की, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना. See, the free exploration is there, the free will is there. आपको मैं मतलब it is very easy to just sit simply and things will happen by itself. आपने अगर आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, सब लोग कल्पना करें, एक 5 साल का बच्चा और मैं, अभी हमने डिस्कस किया, I'm a marathon runner. I run 40 odd kilometers in 4 hours. That is, to give a perspective, it is running on a treadmill at a speed of 10 km per hour for 4 hours non-stop. मगर आप मेरे को एक 6 साल के बच्चे के साथ गार्डन में छोड़ दीजिए और मुझे कहिए उसकी एनर्जी को मैं मैच कराऊं, मैं हार जाऊंगा. वो थका देगा मुझे, ऐसे कूदेगा, वैसे कूदेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, सवाल पूछेगा, ये करेगा. अगर हम दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा. सो बच्चे को, जैसे इस बच्चे को इमेजिन करिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब इमेजिन करिए इस 6 साल के बच्चे को आपने एक एसओपी दे दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. 11 बजे आओ, 9 बजे आओ, इंग्लिश पढ़ो, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो, फिर ये करो, फिर 2 बजे जाओ, फिर 2 घंटे होमवर्क करो, फिर ये करो, फिर कर्सिव हैंड राइटिंग, कुछ भी करो.
आप इमेजिन करिए, आप उसकी पूरी एनर्जी को 5%, 7%, 8%, 10% में कर्टेल कर रहे हैं, वो 90% कहाँ लेके जाएगा एनर्जी? वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी बड़े होके मीन्स सोशल, उस बच्चे बिकम्स द रेबेलियन एटीट्यूड, बिकम्स द फॉर, वो एनर्जी नहीं निकल पाई, वो डिसिपेट ही नहीं हो पाई। मैं ये अभी बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो एनर्जी को आप क्रिएटिविटी में लगाइए या इसमें वो एनर्जी नेचुरल है, वो एनर्जी को डिसिपेशन का टाइम दीजिए। आपने एक एसओपी बना के उसकी एनर्जी रोक ली। दिस इज हैपनिंग टू एवरीबडी। एज मतलब टिल 15, 16, 17, 18 ईयर्स ऑफ एज पीपल हैव इमेंस एनर्जी। हमारा एनर्जी का डाउनफॉल शुरू होता है आफ्टर एज ऑफ 35। तब तक तो एनर्जी है ना, तो क्या करोगे उस एनर्जी को? कुछ नहीं करोगे तो फिर शॉर्ट्स देखोगे और इंस्टाग्राम के रील्स देखोगे, वो एनर्जी का डिसिपेशन है ना। You know, a lot of times I'm asked in the workshop, Shanky, how do you have this bundle of energy? And non-stop for 18 hours, 2 days, I'm And a lot of professors, when I do educators program, like, how do you have so much of energy of going non-stop for 9 hours at a stretch? And I keep wondering, यार, actually, बहुत natural इसमें है क्या? है क्या? I am more energetic after workshop. And what I realize is that a lot of us as educators are engaged in, even things which is coming from the previous conversation, that they themselves are not involved, in what they're doing. आपको जो काम करना है और आपके मन का नहीं है तो आपके लिए बहुत मेहनत है ना। So that's the litmus test, absolutely. Now, there's a very interesting acronym that I've discovered at Utopia, which is SEEQOII. Where did you discover this from? ये तो लर्निंग है ना, मतलब दिस इज द ऑल, दिस इज व्हाट यू लर्न थ्रू लाइफ। दैट एक जैसे आई टोल्ड ना कि ह्यूमन की 2 इनेट नीड्स हैं, इट्स टू लव एंड टू बी फ्री। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल माइंड की भी बहुत सारी इनेट नीड्स हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, बट देयर आर फ्यू दैट आई हैव सीक। इट्स टू सीक, जैसे SEEQUII, इट्स टू सीक, इट्स टू इवेल्युएट, आई विल investigate, Q is question, E is examine. So they will always do these things. आप एग्जाम्पल देखिए ना, छोटा बच्चा मिट्टी खाता है, वो क्या कर रहा है? पेरेंट बोल देगा मिट्टी नहीं खानी, वो क्या कर रहा है? वो एग्जामिन कर रहा है, वो चेक कर रहा है। वो चीटा भी खा लेता है, वो कीड़ा भी खा लेता है, वो सब कुछ कर लेता है। वो कर क्या रहा है? वो पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद वो रिजेक्ट कर देगा उसको। सो ये जो इंटेलेक्चुअल दिमाग की इनेट नीड्स है ना, वी ऑलवेज वांट टू डू दिस ऑल SEEQII विथ थिंग्स, विथ ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज विथ रिलेशनशिप्स। हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही बिल्ट है, इंटेलेक्चुअल लाइफ ऐसे ही बिल्ट है। हमको ये करना ही करना है। छुएंगे ना, देखेंगे क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ऊपर जाएंगे देखेंगे यहाँ से कूदेंगे तो पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ये जो कंटिन्यूस एग्जामिनेशन इवेल्युएशन है हमारे दिमाग में चलता रहता है। अब आप बताइए, एक स्कूल, कन्वेंशनल स्कूल, अनकन्वेंशनल स्कूल, कोई भी जगह या एक प्लेस एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट इस चीज को फैसिलिटेट करेगा वो बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट इस चीज को फैसिलिटेट नहीं करेगा वो कॉम्प्रोमाइज एनवायरनमेंट। दिस SEEQII को फैसिलिटेट करना है उस एनवायरनमेंट में। अगर एनवायरनमेंट इसके ऑपोजिशन में है, एंड एनीबडी कैन सी, every school is against this. Absolutely. It's left. They will not allow you to seek anything. They will not allow you to experiment, question, invest. कुछ नहीं. They will give you a SOP of books of something and they will ask you to comply. अच्छा, मजेदार बात है, कोई डिस्कस ही नहीं करता कि कंप्लाई करवाते क्यों है। पता है क्यों कंप्लाई कराते हैं? बहुत इजी है, मैं बताता हूँ कंप्लाई कराते हैं। आप एक बात बताइए, इमेजिन you have to handle 2 kids. You can. If you have to handle 4 kids, you can. 60, 70, 80. If you have to handle 20 kids, अभी 60, 70 छोड़िए, आप क्या करेंगे? आपको उनको बोलना पड़ेगा finger on your lips. Otherwise, you won't be able to handle those 20. आपको उनको engage करना पड़ेगा, तुम homework करो। आपको उनको engage करना पड़ेगा, तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। आपको उनको engage करना पड़ेगा, मैडम ये सर आएंगे और तुमसे पूछेंगे। हमको टेरराइज करना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपसे वो हैंडल ही नहीं होंगे ना। तो जैसे ही आपने उनके लिए एक प्रोसेस बना लिया कि इनको हैंडल करने के लिए राइट फ्रॉम फिंगर ऑन योर लिप्स से अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपने उन 20 लोगों पे मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू हैंडल दोस 20 पीपल। यही रिजल्ट है कि हम लोग के पूरे क्यों चल रहे हैं, हमको ये पूछना है, हमारा पूरा कन्वर्सेशन वाइब है ना, ये क्यों चल रहा है? इजी है ना, नहीं तो 20 बच्चों को आप कैसे हैंडल कर पाओगे? So how do you break that? You only have 2 kids in Utopia? No, we have kids. We have around per classroom or per lab? No, per lab we are having around right now
12, 13. We don't Let's say your intend capacity is maximum to, maximum 20? is 18. 18. We not take But then more how than do you 18. how do you align those 18 then? Because they will. So when there are 18, so there is a sort of again a sort of theory कि usually बच्चे 3 या 4 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं. मतलब से जिसको कहते हैं बहुत हाईली एकेडमिक और इनका एक सर्टेन दिमाग है, एक कोई एक सर्टेन दिमाग है जो थोड़े से फिजिकली स्पोर्ट्स है इस तरह में उनका है, एक है जो एकेडमिक्स उसको उनका बैलेंस करना चाहते हैं. तो यू विल फाइंड 3, 4, 5 कैटेगरीज जहाँ पे बच्चे अपने आप को सेल्फ डिवाइड कर लेते हैं. हर टीचर को ही पता होता है. और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी परिभाषा में आउट क्लास बोलते हैं. आउट क्लास का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे. तो विद इन अ क्लास वो अपने आप ग्रेड बन जाती है. सो नाउ देयर बिकम्स फॉर एग्जांपल 18 यू हैव अ सिमिलर स्मॉल ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, 3-4 स्टूडेंट्स. फिर उनको हैंडल करना फिर भी इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है उनसे क्या. जैसे ये 3, 4, 5 से ऊपर गया और आप 8, 9 हो गए. सी इमेजिन इन अ कन्वेंशनल क्लासरूम देयर आर अराउंड 35 स्टूडेंट्स. 35 स्टूडेंट्स में नंबर 8 हो जाता है या 10 हो जाता है. 4 ग्रुप हो जाते हैं, 4 ग्रुप ऑफ 10 विद इन अ क्लास. आप नहीं हैंडल कर सकते. देन यू हैव टू फॉलो अ सिंपल पैटर्न. सिंपल पैटर्न पढ़ाना जिसको कहते हैं ना एकेडमिक्स. उसमें जो बेटर है एकेडमिक्स में वो और एक्सेल करता जाएगा और जो पुअर एकेडमिक्स में वो और पीछे होता जाएगा क्योंकि आप उसके साथ डेली एक चीज पे कर रहे हो ना. यू आर जस्ट डीलिंग विद वन लेवल. एकेडमिक्स इज योर मेन पैरामीटर टू डील विद स्टूडेंट्स. उसमें जो पढ़ रहा है वो और पढ़ता जाएगा. आप देखो ना जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आ रहा है वो 10th में भी वही फर्स्ट आ रहा है मोस्ट ऑफ केसेस में. वही 12th में भी फर्स्ट आ रहा है, वही वो हो रहा है ना. और जो बेचारा पीछे है वो और पीछे होता जा रहा है और पीछे होता जा रहा है. इनफैक्ट आजकल तो सेक्शंस में भी डिवाइड है ना. पीछे होते जाओ तो आपको सी सेक्शन में भेज देंगे, डी में भेज देंगे और उसको प्रमोट कर लेंगे. तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज मेकिंग अगेन स्टूडेंट फील दैट यू डोंट बिलोंग. तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज इन यूटोपिया इज वी हैव फर्स्ट स्ट्रेंथ कम. और स्ट्रेंथ कम करने के बाद हम लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार ये ऐसा है, इसके साथ हम लोग को सर्टेन लेवल पे डील करना है. Okay. And to the point, okay? Don't beat around the bush. All right. So, one thing that, I find you is you're a voracious reader. Whenever I meet you, you're like, Varun bhai, aapne ye padha hai, wo padha hai. What is one book that has made you, really hit you hard? कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं एजुकेशन में. इट इज समरहिल. समरहिल इज अ बुक ऑफ अ रेजिडेंशियल स्कूल आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन. उन्होंने A.S. नील करके एक ऑथर है, उन्होंने लिखी हुई है. Name of the book is समरहिल. Interesting. I have not come across that. Summerhill is a school. And you won't believe that if you buy that school, that book, most of the place you will find उसमें थप्पा लगा रहता है CBSE recommended. It's a book which every parent should read. Wow. So, couple of books, Educating the Educator by Jiddu Krishnamurti. Then there's a book called Toto Chan. These books every parent should read. All right, so I'm going to probably give me the list of 5 books. I'll put it on a link over there for others. But one is Summerhill. Summerhill. All right, awesome. So what are the core lessons that you learned from that book? What 2, 3 ideas that? So A.S. Neil obviously was a child psychologist, and a child psychologist opened a school. उनको भी ऐसे लगता था. थोड़ा बहुत हम लोग ने शायद यूटोपिया में उससे रेफरेंस भी लिया हुआ है. So he again believes कि the core of learning comes when you नो अबाउट द चाइल्ड. तो जैसे मैं 2-3 की लेसन्स की बात करते हैं. जैसे वाई डज अ चाइल्ड लाई. चाइल्ड लायर हो नहीं सकता ना. चाइल्ड लाई बिकॉज ऑफ फियर. सो चाइल्ड की लाइंग इज अ पेरेंट बिहेवियर. चाइल्ड कैन नेवर लाई, बट अगर वो डरेगा तो हमेशा लाई करेगा. सो वाई डज अ चाइल्ड लाई. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बच्चे से प्लेट टूट जाए या आईफोन टूट जाए 4 साल के बच्चे से, आप बच्चे को डांट ही नहीं सकते. मगर आप डांटते हो. क्यों नहीं डांट सकते? बिकॉज चाइल्ड हैज जीरो रिगार्ड फॉर मटेरियलिस्टिक वैल्यू टिल इट कम्स ऑफ अ एज. उसके लिए हीरे गुटकना, नाली में फेंकना, सोना फेंकना, आईफोन फेंकना सब बराबर है. हमारे को वैल्यू है ना उससे. तो अगर आपकी वैल्यू है तो या तो आप उसको अपने पास रखें, सेफ सिक्योर रखें. अगर आपके पास नहीं है और अगर बच्चा तोड़ रहा है तो बच्चे को डांटेंगे. उसके लिए जीरो वैल्यू है ऑफ एनी मटेरियल. उसको पता ही नहीं ना क्या उसको पता है हीरा. So there are couple of these you will be fascinated to the depth of insights. The depth of insight. बच्चा क्यों झूठ बोलता है, बच्चा क्यों मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए क्यों वैल्यू नहीं करता, फिर बच्चा क्यों रेबेलियन बन जाएगा कभी जाके अगर उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता. एवरीथिंग. टॉयलेट ट्रेनिंग. हम लोग को लगता है कि अगर हमने बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं कराई तो हमसे अपराध हो गया. ही इज अगेंस्ट टॉयलेट ट्रेनिंग.
बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि फैमिली वाले के जीवन में प्रॉब्लम ना हो. इफ इमेजिन यू हैव अ डॉग, अभी चाइल्ड की बात नहीं करें, आप चाहते हैं कि जब उसको टाइम आए उसका जाने का तो वो बता दे आपको ताकि आप बाहर लेके जाए. कुत्ता आपको पालना है, बड़ा शौक है, लेकिन टॉयलेट शेड्यूल आपके हिसाब से होना चाहिए. ऐसे ही होता है ना यूजुअली. सो वो उसकी डीप साइकोलॉजिकल इनसाइट्स हैं that there is a very fine line between, yes, sometimes it might be necessary, but you cannot force them to have a schedule. Got it. When you do it, then it has an impact on their psychology also. One question that is just emerging, which is impromptu right now, Shanky, which is exploratory for me and you probably, is what if a child who is going through circumstances in his life where he does not get that sense of belonging from his parents, and parents are not responsible enough to understand their behavior and the consequences of those behavior to them. How can a child deal with such situation? They don't. They cannot. नहीं कर पाएंगे उनसे. क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है ना अभी एक्सप्रेस करने का. उनके पास पावर नहीं है. उनको पता है. जो आपने सवाल पूछा, मैं चाहता हूँ इस सवाल एक बार आप हिंदी में भी पूछिए. ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार जो होता है ना स्थितियाँ जो हम देख रहे हैं, एक बच्चा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ जिसको कहते हैं ना, बिलोंगिंग का हिंदी मुझे नहीं पता. ठीक है. मतलब अपनापन नहीं, गहराई से जिसको बोल सकते हैं, अपनापन महसूस नहीं कर रहा. वो हमेशा एक जजमेंट का उसको लगता है कि उसका जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट हो रहा है. और ऐसी स्थिति में वो क्या करे जब वो ये अपने आप को हेल्पलेस पा रहा है कि वो चीज़ उसको अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रही है, और पेरेंट्स उतनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे अपने उस बिहेवियर का, या उनको पता भी नहीं है. यदि पता भी है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे. आपने सवाल में जवाब दे दिया ना, तो बच्चा क्या करे? हेल्पलेस. आपने बोला ना, सवाल में जवाब दे दिया ना. हेल्पलेस है तो उस हेल्पलेसनेस से कैसे निकल सकता है? कुछ नहीं कर सकता. दिस इज समथिंग दैट बोथ ऑफ अस नीड टू एक्सप्लोर यार. वो कौन निकल सकता है? हाँ, कौन निकल सकता है? कौन? आप सोचिए, जैसे मैं बड़े हु नीड्स एजुकेशन, चाइल्ड और एन एजुकेटर? एजुकेटर. Child doesn't need education, it's educator, and educator by extension is parent, teacher और समाज, सोसाइटी जिसको आप उनको एजुकेशन चाहिए. ये चीज़ जो आपने मुझसे पूछी, ये चीज़ आपको किससे बात करनी चाहिए? एक पेरेंट से बात करनी चाहिए. जब हम पेरेंट से डिस्कस करेंगे, हो सकता है उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ रही हो सकता है हेल्पलेस फील कर रहा हो, तो वो आपको सिखा देगा, वो नहीं सीखेगा. वो नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा ही रहता है, यार तुमको नहीं पता है, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती है, ब्ला ब्ला. बहुत इजी है ना. अगर आप कोई डिफिकल्ट प्रोसेस बता देंगे उसको, शायद वो एक बार एक्सेप्ट कर भी लेगा. अगर आप उसको इजी बोलेंगे, बच्चे से बात करो, बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो थोड़ी देर, ज़्यादा उसके प्रोसेस में इंटरफेयर मत करो. क्या होगा नहीं होगा हमको इसका बहुत आइडिया नहीं है. दे हैव अ वेरी फिक्स्ड एंड रिजिड माइंड सेट. दे नो एवरीथिंग अबाउट देयर चाइल्ड. वी डोंट. बच्चे को नहीं पता तो उनको सब पता होता है. आपको नहीं पता वो ऐसा करता है. सो बच्चा हेल्पलेस है क्योंकि उसकी पावर कम है, एज में छोटा है, बड़ा नहीं हो पाया, इसलिए वो छोटा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा. हेल्पलेस है ना. उस हेल्पलेसनेस का सोल्यूशन आप भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ. ये जो पूरी प्रोसेस है ना मेरी लाइफ की, वो उस हेल्पलेसनेस को ढूंढने की ही है. वो क्या करे? माई लाइफ मिशन इज दिस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन. दैट इज व्हाई दिस आंसर कैन ओनली बी सॉल्व्ड if we have a awakened parent, by extension awakened teacher, by extension an awakened society. Otherwise I'm very, I might sound very bad in this, but it's a very serious thing. No parent in this world right now has the authority to bring a child to this society. नहीं है किसी के पास. नहीं डिजर्व कर रहा कोई बच्चा इस सोसाइटी में आना राइट नाउ. नहीं कर रहा. इतना ही डिफिकल्ट है. बट कोई नहीं समझेगा ये बात. बहुत सीरियस कंसर्न है ना. आप सोचिए ना, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? हेट, लड़ाइयाँ, सोशल जजमेंट. क्यों उसको, क्यों बेचारे को क्यों परेशान कर? बहुत लंबे एज तक वो हेल्पलेस रहने वाला है. बहुत लंबे एज तक. मतलब frankly, this is not just in society. I see it left, right and center in my own family. What to say? You will see it if you have the eyes. इंफ्रारेड को और अल्ट्रावायलेट को हम लोग देख नहीं सकते. इसका मतलब ये थोड़े कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट कर रही है ना. जैसी किसी के पास आंखें आ जाएंगी देखने की, वो देख लेगा. सही बात. चलो अपन को बीट अराउंड द बुश नहीं करना, आगे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट.
consider school as a person, and if you could cry, यदि वो रोएगा, मतलब एक इमेजिन करो, एक स्कूल एक इंसान है, और यदि वो उस इंसान को वो रो रहा होगा, तो वो किस बात में रो रहा होगा? बेसिकली इफ अ स्कूल इज क्राइंग फॉर समथिंग, व्हाट वुड दैट बी क्राइंग एज पर यू? मे बी कपल ऑफ थिंग्स कि मुझे एक रियल बच्चा मिले, रियल बच्चा, इनोसेंस मिले बच्चे की। जब बच्चा स्कूल में है ना, तो उसकी इनोसेंस और रियलिटी खत्म हो चुकी है, वो नहीं रह पाता, खत्म, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती Got the है। answer. सो आज स्कूल विल आस्क, यार मुझे वो इनोसेंस लौटा दो, दैट लव, हाँ वो लौटा दो, बच्चे में वो होना चाहिए, दैट शुड बी पार्ट ऑफ इट। I have a list of questions, but I feel like I want to ask you something more deeper right now. uh, how can a system of education nurture creative mindset instead of rote memorization? What system transformation can happen? देखिए, मेमोराइजेशन इजी है इसलिए चल रहा है, समझिए आप, जो चल रहा है ना इसलिए चल रहा है क्योंकि इजी है, गेज करना इजी है ना, रटा दिया। रटा दिया, टेस्ट ले लिया, सवाल जवाब मिल गए, पता चल गया, ग्रेड पास कर, कितना इजी सिस्टम है ना। You give 10 questions to a person, Very nice. he will answer 8, he is a 80% child, he will answer 6, he is 60%, he'll answer 10, 100%, then we'll start saying him brilliant, learning, ये वो करते करते आप जो भी आपको करना है, बहुत इजी हो गया। मजेदार बात ये, उसके बाद क्या होता है, जब वो अगला वाला जाता है ना, तो उसका आप समझिए पूरा सिस्टम कॉन्फिडेंस का होता है। 10 में 10 वाला जब जाएगा तो उसका ऐसा सीना चौड़ा रहेगा, फिर उसके बाद टीचर भी उसके लिए अकोमोडेटिव हो जाता है, सब कुछ उसके लिए अकोमोडेटिव, उसके लिए लाइफ आसान हो जाती है। इसका कम वाला होता है ना, वो बेचारा फंसता रहता है, शर्म आने लगती है उसको, ये बिलोंगिंगनेस नहीं आती, लगता है मैं पूछ रहा हूँ तो मैं गलत होऊंगा, मैं कैसे पूछ सकता हूँ, 10 वाला पूछेगा, 6 वाला कैसे पूछ सकता है, और 3 वाले की तो बेचारे की हालत ही खराब है, वो तो बेचारा पीछे रह गया। तो ये जो मेमोराइजेशन का पूरा रैकेट है ना, ये इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ पर गेज करना बहुत आसान होता है। द फ्लिप साइड टू दिस मेमोराइजेशन बाय डिफॉल्ट इज क्रिएटिविटी। A child नहीं करेंगे तो अपने से क्रिएटिविटी हो जाएगी। कुछ और ऑप्शन ही नहीं है ना, वो करेंगे क्या? इट्स लाइक आपने अगर मिट्टी में जो बीज बोया उसका वो हो जाएगा, मतलब वो निकल आएगा। अब इमेजिन करो अगर आप कुछ भी नहीं बोगे, तो जिसको हम लोग अपने यहाँ की भाषा में कहते हैं ना कांस, वो कांस तो उगेगी उगेगी, खरपतवार। खरपतवार। अभी कांस को हम लोग एक नेगेटिव वर्ड की तरह लेके चलते हैं, बट इमेजिन इसी तरीके से लोग बोलेंगे बच्चे के दिमाग में शैतानी नहीं होगी, शैतानी बच्चे के दिमाग में, शैतानी इज अ वे ऑफ हिम एक्सप्रेसिंग हिज क्रिएटिविटी। इमेजिन करिए, आप लोग सब कल्पना करिए, एक 3, 3.5, 4 साल के बच्चे को यहाँ छोड़ दीजिए, वो टेबल पे चढ़ेगा, टेबल पे चढ़ने के बाद यहाँ चढ़ेगा, और फिर यहाँ से नीचे वापस फर्श में कूदेगा। अभी ये शैतानी की कैटेगरी में नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर वो टेबल पे चढ़ेगा, फिर वो यहाँ चढ़ेगा, फिर वो इस पे भी चढ़ जाएगा, फिर वो यहाँ से कूदेगा। अब हमने इसको कह दिया कि ये शैतानी है, क्योंकि यहाँ से गिरने पर उसको लग सकती है, लोगों के हिसाब से लगेगी नहीं कहने की बात। अब समझिए, उस आपके लिए शैतानी है ना, उसके लिए तो क्रिएटिविटी है। पहले वो टेबल से कूदा, फिर वो यहाँ से कूदा, फिर वो यहाँ से कूदा, वो 4 जगह से कूदेगा। वो इस लाइट को तोड़ भी सकता है, वो इस लाइट को चेक भी कर सकता है, वो इस स्विच को निकाल भी, वो कुछ भी करेगा ना। सो फॉर हिम, इफ यू विल नॉट आस्क हिम टू फॉल इन द रैकेट ऑफ मेमोराइजेशन, he will by default be creative. There is no other way. You just have to सॉइल प्रिपेयर भी नहीं करनी है, सॉइल तो प्रिपेयर्ड भी है। हाँ, फिर अगर आप पढ़े लिखे लर्नेड आदमी हैं, जैसे हमारे मान लीजिए स्कूल्स में टीचर्स होते हैं सो कॉल्ड, या समाज में बड़े लोग, आप उसकी इस क्रिएटिव लर्निंग को थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो सर्टेन थिंग्स आफ्टर अ सर्टेन एज विच ही डजंट राइट नाउ। सो आप थोड़ी बहुत सटल वे में इस क्रिएटिव माइंडसेट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली रोल ऑफ अ टीचर, सो कॉल्ड फैसिलिटेटर इन द सोसाइटी, दैट इज, वो क्रिएटिव ही है। कोई अनक्रिएटिव बच्चा पैदा होगा ही नहीं। यू किल द क्रिएशन इनसाइड बाय फॉलोइंग योर मेमोरी वाले रैकेट में उसको डाल दिया आपने। Awesome. I think for majority of the questions, which are there also remaining, has kind of been answered in some permutation and combination. So I want to not further dive deep into the leftover questions, but let's conclude this podcast, right? And this conclusion can happen in either ways. uh, Anything that you'd like to talk about,
from whatever you'd like to say. सी, हम सबको समझना चाहिए स्कूल और सोसाइटी दोनों सेम है. कैसे? सोसाइटी, हम लोग बोलते हैं ना सीख रहे हैं, अभी भी आप सोचो सीख रहे हैं. सीखते कहाँ हैं? स्कूल में सीखते हैं. सोसाइटी इज अ बिग स्कूल, अ स्कूल इज अ स्मॉल सोसाइटी. अपन को ये कंक्लूड अभी थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं. स्कूल भी एक छोटा सा समाज है और समाज भी एक बड़ा सा स्कूल है. हम लोग अपने बच्चों को ये बात बोलते हैं कि यही मान के चलो. स्कूल में जो थोड़ी बहुत लर्निंग है वो यही भी है. एक पार्ट ऑफ द लर्निंग इज हाउ टू बी और एक्ट इन दी सोसाइटी व्हेन यू कम ऑफ एज. जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आप वहां पर किस तरीके से अपना व्यवहार करेंगे, उसकी एक छोटी मोटी लर्निंग आपने स्कूल में भी दी जा रही है. जो आपने कहा ना कि हाउ वी कैन कंक्लूड दिस इज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द एजुकेशन सिस्टम and by extension the social system is not correct or it needs a revamp, it needs to change. हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था, we have to acknowledge this first. हम लोग एक्नॉलेज करें या हम लोग एक्नॉलेज नहीं करें वो हमारे हाथ में, बट रिजल्ट सबको दिखता है. ये तो वही वाली बात है कि हम आंख बंद करके बैठे हो. अगर आज कोई बोले कि बड़ी पेसिमिस्टिक बात है, ये नेगेटिव बात है और मोटे तौर पे सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कहीं कुछ खराब नहीं चल रहा, तो आई वुड कंसिडर इट्स कि उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है. वो नहीं देखना चाहता या देखते हुए उसको नजरअंदाज करना चाहता है, वो उसका जरिया, वो उसका वो है, मतलब उसका तरीका है देखने. बट द सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग is not good and the school system is also not good. We are trying to create and force, एक सिंगल वर्ड है वो कन्फॉर्मिज्म, हमने डिस्कस किया उसको भी. वी वॉन्ट पीपल टू कन्फॉर्म टू अ सर्टेन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, क्योंकि उससे हमको इस समाज को और स्कूल को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा. वी जैसे ही कोई डेविएशन हो गया, वो डेविएशन बिकम्स थ्रेट टू द सोसाइटी और टू द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, वरुण चमड़िया ने अभी बोला कि मैंने जब अपने स्कूल में अपना मेजर्स छोड़ा, तो आप इमेजिन करो 4 लोगों ने अगर आपको फॉलो कर लिया होता या आपके कॉलेज में फॉलो कर लें उसी टाइम पर, सो फिर यू कैन नॉट ड्रॉप आउट ना. देन दैट प्रोफेसर हैज टू डू और अकोमोडेट वॉट एवर यू वांट टू डू. अगर 4 लोगों ने या 6 लोगों ने और अगर आपकी टीम में बोल दिया होता कि नहीं हमको भी कुछ और पढ़ना है, सो बेसिकली क्या होता, फिर उसके बाद वहां पर वो चेंज चाहिए होता, वो चेंज कर देते. तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर जो भी हमारा आज के टाइम पे सिस्टम है ना, उस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज ये जो कन्फॉर्मिज्म चल रहा है ना, ये कन्फॉर्मिज्म कुछ भी यील्ड नहीं करेगा. वी आर कन्फॉर्मिंग, नॉन कन्फॉर्मिस्ट विल ऑलवेज बी कॉल्ड रेबल्स. और ये रेबल्स क्योंकि इतनी माइनॉरिटी में है, सब सिर्फ एक चीज माइनॉरिटी में है, वो क्या है? रेबल्स. और एक चीज और माइनॉरिटी में है, वो क्या है? इनोवेटर्स. तो आप समझिए इनोवेटर्स और रेबल कितने एक जैसे दिखते हैं. स्टीव जॉब्स वाज अ ड्रॉप आउट. आई डोंट नो, इलॉन मस्क आई थिंक वाज आल्सो, उसने कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली. हम लोग नाम लेते जाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जानते हैं कि ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है, उस कन्वेंशनल सिस्टम को बिलोंग नहीं करते. शायद मार्क जकरबर्ग वाज आल्सो अ ड्रॉप आउट. ठीक है, मेरे पास अभी भारत के कोई बहुत अच्छे नाम नहीं है, जो मतलब मुझे या तो याद नहीं है, मैंने शायद किसी के बारे में पढ़ा. इवन आइंस्टीन डिडंट रिसीव एनी फॉर्मल एजुकेशन बहुत समय तक. वो तो 12 साल तक स्कूल ही नहीं जाता था. आपको पता है, आइंस्टाइन नेवर वेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 12. बिल्ली से डरता था. आइंस्टाइन वाज नॉट एबल टू पे हिज रेस्टोरेंट बिल. उसको मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स नहीं आती थी उसको बस में कहाँ जाना है उसको अपने कंडक्टर को नहीं बता पाता था मुझे कहाँ जाना. ही वाज इन्वॉल्वड इन समथिंग एल्स. ये कन्फॉर्मेशन हैज टू एंड. If this conformation will continue, then there is a certain sect of people who will continue to dominate us. स्कूल भी डोमिनेट करेगा, टीचर्स भी डोमिनेट करेंगे, और बच्चा डोमिनेट होने के लिए नहीं बना हुआ. उसी तरीके से समाज डोमिनेट होने के लिए नहीं बना. और जैसे किसी को लगे कि मैं डोमिनेट हो रहा हूं और उसने अपना वो किया, क्या अपना ये बताया कि मैं डोमिनेट हो रहा हूं, थोड़ा सा अलग हुआ, सोसाइटी उसको मार देगी. नॉट फिजिकली मार देगी, उसको खत्म कर देगी सोसाइटी, बिकॉज ही बिकम्स अ थ्रेट टू सोसाइटी. उसी तरीके से कोई बच्चा जब बोलता है ना मुझे नहीं पढ़ना, उसको मार दिया जाता है, बिकॉज ही कैन बिकम अ थ्रेट टू स्कूल. क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारे कम लोग चाह रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो गया तो उसकी टीम बन जाएगी ना.
ये कन्फर्मेशन के प्रोसेस को चेंज करना, एंड दिस कन्फर्मेशन प्रोसेस कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली, कैन बी चेंज्ड. There is a new education policy 2020 which is laid down. No school, you will find no school have an environment according to that NEP. No school, zero. So new education policy जो लोग बनाते हैं, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग NCERT कहते हैं, वो लोग जो पूरा करिकुलम डिजाइन करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो लोग बनाते हैं, वो लोग ब्रिलियंट लोग हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पता है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए. प्रॉब्लम क्या है, जब उस एजुकेशन का एग्जीक्यूशन होता है थ्रू दी स्कूल्स एंड बाय एक्सटेंशन देयर टीचर्स, वो स्पिरिट में नहीं हो पाता. वो होता है फॉर दी ये जो मेमोराइजिंग या नंबर गेम है. एंड इसमें स्कूल्स तो जितने दोषी हैं नहीं है मुझे नहीं पता, आई एम नोबडी टू कॉल देम. इसमें पेरेंट्स बहुत दोषी हैं. पेरेंट्स वांट्स देयर चाइल्ड टू हैव अ सर्टेन एकेडमिक वैल्यू. आप बहुत पहले सुनते थे, लोग बोलते थे यार पढ़ो पढ़ो पढ़ना है. अभी पिछले 10 साल में एक शिफ्ट हो गया है. लोग बोलते हैं अच्छा पढ़ नहीं रहे हो, चलो क्रिकेट खेल लो, चलो मतलब कुछ तो करना ही है तुमको. मतलब लॉ ऑफ सक्सेस एंड फेलियर में तुमको सक्सेस के साइड में झुकना ही है. नहीं खेल रहे हो तो बैडमिंटन खेलाओ, बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो तो चेस खेल लो, चेस नहीं खेल रहे हो तो ओलंपियाड कर लो, ओलंपियाड नहीं करो तो आर्ट इसलिए कर लो ताकि मैं 4 लोगों को बता सकूं कि मेरा बच्चा कहीं से तो सक्सेसफुल हुआ ही हुआ है. क्यों हुआ, क्यों सक्सेस की जरूरत है उसको. सो ये जो पूरा सक्सेस एंड फेलियर का रैकेट है ना, और उसमें सक्सेस का परसेंटेज हमेशा कम है ना, तो 90% या 80% या 70% हमेशा अपने आपको फेल फील कर रहे हैं ना. एंड उनको पता ही नहीं चला वो फेल कब हो गए. तो अब ये जो बिलोंगिंगनेस थी जो अभी छोटे से स्कूल में थी, नॉन बिलोंगिंगनेस, ये नॉन बिलोंगिंगनेस समाज में भी आ गई है. सो दे स्टिल नॉट एबल टू फील दैट दे बिलोंग इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्कूल विच इज दिस सोसाइटी. यहाँ फंसा हुआ है गेम. एंड दिस हैज टू चेंज, दिस विल चेंज, दिस मस्ट चेंज. आई तो हैव फुल क्या कहते हैं उसको belief this will change. And if we want, we can say right now when we conclude that utopia may be one of these steps जहां पर जो ये वाला change है. Because I do not see education as a process which starts at age 3 and ends at age 15. In that few years you have to make a person जिसको किसी से validation नहीं चाहिए, उसको पता है कि वो सही है, उसको पता है उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उसको पता है उसकी कैपेबिलिटी क्या है. नो अथॉरिटी, नो सोसाइटी कैन वैलिडेट कि तुम यहां पर गलत हो. दे हैव गॉट नो राइट टू टेल यू वेदर यू आर राइट वेदर यू आर रॉन्ग. तो ये है, एंड आई एम तो वेरी फर्म बिलीवर कि दैट दिस विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. Got it. जब भारत आजाद नहीं हो रहा था ना, बहुत लोग सोच रहे थे ना कभी आजाद नहीं होगा, कभी आजाद नहीं होगा. इट हैपेंड, होगा कभी ना कभी. दिस विल हैपन. जितना इजी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए, जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर दें वो अच्छी बात है. एंड मे बी दिस बिकम्स अ स्टेप वेयर पीपल और मे बी अदर स्टेक होल्डर्स इन दिस सोसाइटी फील कि हाँ ये किया जा सकता है. एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि वी वॉन्ट अदर स्कूल, अदर एजुकेटर्स टू कम एंड सी यूटोपिया. Yeah. So utopia will never be a school जहां पर 200-250 बच्चे से ऊपर होने वाले हैं. There will be no section B, there will be no buildings, no this. So हमको जो जो बेस्ट लेना था स्कूल से हमने लिया है. हमने एकेडमिक्स लिए, हमने टीचर्स का ट्रेनिंग भी करी है किस हिसाब से होना चाहिए. बट वी आर ऑल्सो गिविंग समथिंग जो शायद स्कूल्स में नहीं है. वॉट वी वॉन्ट, कम टू यूटोपिया, टेक समथिंग फ्रॉम अस एंड ट्राई टू बिल्ड देयर. हो सकता है वो बिल्ड करने से आपका कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, नहीं जो तो आपका सिस्टम तो अच्छा चल ही रहा है. सो वी आर मतलब we say that if you want to send your child to any school, you can send them to the best school. But if you want to send your child to a place where he belongs, then there is only one utopia. On that note, many congratulations, Shanky, for taking the initiative to start Utopia, because I know your business schedules and your business empire, they're massive, and you really don't have you didn't have to do this. It's coming out of your pure love, and the best thing is your own kids are in Utopia. Yes. which So I have skin in the game. Yes. I always notice that a lot of people, they're running their education institutions, but their own kids are studying somewhere else. So this is a litmus test again of the authenticity and love that And you by bring on board. extension हमारे जितने टीचर्स हैं उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में. Got it. So it's a so called कि ये करना ही है आपको. Yeah. So here comes the conclusion of this podcast. I know I didn't talk much because the intention was to decode Shanky's brain here and his understanding of things.
And I genuinely want to say thank you to him and to the audience here to be observing this. Some of the key lessons that I am observing from this dive deep with Shanky is, belongingness. I think that's the word that makes a huge difference. And it's the thing that as parents, as teachers, as principals, as owners of academic institution needs to bring forth that sense of belongingness. And if you're able to bring that, you know, I think everything else falls into the place. So please do that. With a final note, Shanky, thank you for taking the initiative to start this in Satna. A lot of people are very pessimist about Satna mein kuch nahi ho sakta, and here's this guy who has taken on investing his time, his energy, and his money to bring some positive impact in the society and the community called Satna. So one of my core reasons for inviting you was, my vision is to make Satna a global innovation hub, A better place. a better place, and a global innovation hub. I'm inspired by Singapore story. Why can't Satna be the next Singapore? And I think we all are contributing in that journey. And Shanky, who knows? 10 years, 15 years, 40 years from now, Utopia actually becomes such a global phenomena that the world is looking forward to see this place as a place of transformation in education. Yes, maybe. With that blessings, with that prayers, I conclude today's session. Thank you so much. Thank buddy. you, thank Give me a 5. All right. You want to say anything before concluding? नथिंग मच टू से, बट आपने एक लाइन बोली ना, मैं थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो कुक हो रही है अंदर. Go ahead. You belong where you feel free is how you enter into utopia. You know what is the conclusion of this? When you feel free, you belong. So आपके अंदर जब एक्सट्रीम फ्रीडम आ जाती है ना, तो आप कहीं भी जाइए, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपसे जुदा नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी. So we try to give you that sense of belongingness in our environment. And when you actually become liberated or free, आप कहीं भी जाइए, वो आपसे फ्रीडम कभी नहीं होगी. So it starts with you belong where you feel free, and it ends with when you feel free, you belong. So वो belongingness compromise नहीं होनी चाहिए. I hear you, and it's quite deep and fascinating. All right, thank you everyone. Thank you everyone. And I would request everybody who is listening this podcast, especially parents, teachers, educators, कि बच्चे के साथ आपका छोटे से लेके बड़ा तक कैसा भी बिहेवियर होगा, वो उसकी लाइफ को इमेंसली इम्पैक्ट करने वाला है. तो जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों की चाइल्ड रियरिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे बच्चे को कैसे पालना है, उसमें उनको लर्निंग चाहिए. दे शुड नो. ऐसे उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम भी तो पल गए, वही पल जाएंगे. नहीं, आज की जो सोसाइटी की डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है. 30 साल पहले यूट्यूब नहीं था, 30 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था, 30 साल पहले इन्फ्लुएंस नहीं था. इफ़ द सोसाइटी बाय एक्सटेंशन इज चेंजिंग, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. आज से 30 साल पहले अमेरिका में क्या होता था हमको 3 महीने बाद पता चलता था. आज अमेरिका में क्या हो रहा है हमको 3 सेकंड में पता चलता है. सिंस थिंग्स आर चेंजिंग, वी हैव टू अकोमोडेट. चाइल्ड रियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके लिए आपको जो हेल्प चाहिए, इफ़ यू नीड बुक्स, इफ़ यू नीड चाइल्ड काउंसलर्स, इफ़ यू नीड टू हैव अ टीम, वो करना चाहिए. बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल, फॉर यूटोपिया, फॉर सोसाइटी, किसी के लिए भी वो उस पर मिस नहीं करना है हमको. सबसे इंपॉर्टेंट. Final question to you: what do you think of proactive eyes work? Whatever you have explored. प्रोएक्टिव आई. देखिए, प्रोएक्टिव आई इज अगेन फॉस्टरिंग द सेंस ऑफ सो कॉल्ड इनोवेशन इन द चाइल्ड. आपने जैसे ही फील्ड को रेडी किया, दैट फील्ड इज रेडी टू ग्रो. सो आप इनोवेशन सी आज आप बिलीव करिए, एप्पल की स्टोरी है ना. सो एप्पल का ओनर कौन है? Steve. नहीं, एप्पल का कोई ओनर नहीं है. स्टीव जॉब्स क्रिएटेड एप्पल. नाउ देयर इज नो स्टीव जॉब्स, देयर इज नो ओनर टू द एप्पल, एंड एप्पल इज एट $3.5 trillion कंपनी. बट देयर इज नो ओनर, बट देयर वाज एन इनोवेटर टू इट. स्टीव जॉब्स वाज द इनोवेटर टू इट. सिमिलरली ये जो इनोवेशन है ना, ये इनोवेशन फॉस्टर कब होगा? ये इनोवेशन फॉस्टर तब होगा जब
आप बाकी चीज़ों से बाकी डिस्ट्रैक्शन को नहीं रखेंगे. So what you are doing with Proactive Eye, you are when you meet teachers, when you do workshops, you are just telling them कि leave the crap aside. जैसे ही अपने क्रैप असाइड किए, इनोवेशन तो हो सकता है आपकी इनहेरेंट क्वालिटी हो, प्लस आई एम गिविंग यू सर्टेन टिप्स एंड अ स्ट्रक्चर, एंड देन दैट स्ट्रक्चर विल लीड यू टू दिस, बिकॉज इनोवेशन आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है. Similarly, by doing a podcast like this, which is Uzu Darbar, I think, is again a very good initiative. Obviously, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे discussions होंगे. Discussion is a way to discover. जब discussions होंगे तो discover होंगे. So I feel that this, the extension of Proactive Eye is a very good step. और ये चीज़ें बहुत बहुत impact करेंगी. ऑब्वियसली लोग देखेंगे, जानेंगे, समझ में आएगा लोगों को आपका इसमें क्या डिजायर है. कोई डिजायर नहीं है. इट इज ड्रिवन बाय अ सेल्फलेस डिजायर टू मेक दिस अ गुड प्लेस. दिस मीन्स सतना अ गुड प्लेस, देन बाय एक्सटेंशन अ वर्ल्ड अ गुड प्लेस. सो ये जो आपका इनिशिएटिव इट इज़ वेरी गुड. प्रोएक्टिव आई के साथ तो आई हैव बीन लिंकिंग, सो यू डू क्रिएट लॉट ऑफ वर्कशॉप. वो बहुत अच्छी चीज़ है. पीपल शुड नो, दे शुड हैव अ डिफरेंट आइडिया टू द लाइफ ऑल्सो, which is done. Life is very vast. जो लोग जी रहे हैं ना उससे बहुत ही ज्यादा है. तो बाय एनी मीन्स उनको जितना इनपुट मिले वो इनपुट ले लेना चाहिए. दैट विल मेक देम बेटर. Got it. Thank you. So let's conclude today. I'll see you in the next podcast, guys. Bye.